I Neha Miglani. Welcome to Divakar Education Hub. Today I am going to start the topic of types of research methods with example parts 8. I think this will be the last video in this types of research with examples. In this video I am going to discuss the experimental research types. In my previous video, part 7th video, I have discussed the experimental research with brief manner and also explain some characteristics and some factors which can affect the experimental research, like what is validity, what are the variables which are affect our experimental study. We have discussed all these things in a brief manner. In my today video, I am going to discuss the types of the experimental research. So let's start our video. Starting my video, I just want to say that just download the Divakar Education Hub app from the Google Play Store. In this app, you can easily get the UGC NET Paper 1 free online classes, and you can also get the 150 plus mock test from the different subjects which you are going to apply in the UGC NET, and then you can also read free study notes from the paper 1 and 2, and you can also get some announcements are being done under the Divakar Education Hub, and the live classes which are going to be conducted in the previous days also you can get it, and you can also chat with another students in this app also. So please, I just recommend you that you have to upload or install Divakar Education Hub app from Google Play Store. What are the types of the experimental designs? We have 3 to 4 types of the experimental design. First is pre-experimental design. In pre-experimental design, there is one short case study design, one group pre-test, post-test design, statistic group design, and in our second experimental design is true experimental design. In true experimental design, there are also 3 types of the experimental design: post test only control group design, pre-test post test control group design, Solomon 4 group design. Next we have third type, that is the experimental design, quasi-experimental design. In quasi-experimental design, we have the experimental design like as non-equivalent control group, time series, multiple time series, and in our fourth experimental design is factorial design. In factorial design, and next our is firstly we are going to discuss the pre-experimental design. In pre-experimental design, we have 3 types of pre-experimental design. First one is one short case study design, next one group pre-test post-test design, next statistical group comparison design. सो इन सब को डिस्कस करने से पहले, टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता क्या है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या एनी अदर टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं फिर से आपको एक बात बता देती हूँ। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट करने के टाइम पे हम 2 तरीके के ग्रुप्स लेके चलते हैं। एक होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप, एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है? जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और कंट्रोल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? जिनके ऊपर उनका इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, लाइक there is always a 2 variables, independent variables and dependent variables. इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर शो होता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और कंट्रोल ग्रुप में हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि कितना साइड इफेक्ट या इफेक्ट या कितना कॉज एंड या कुछ रिलेशन फाइंड आउट हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। आपकी स्टडी जो होती है वो लेबॉर्ट्री साइंस की स्टडी होगी। सेकेंड, यू हैव टू फॉर्म द 2 ग्रुप्स। थर्ड, देयर शुड बी ए 2 वेरिएबल्स। सो प्री और पोस्ट को अब समझते हैं। प्री क्या होता है? प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, तो अब प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से पहले।
Pre-experimental design represent the simplest form of research design. Consider pre indicating they are preparatory or prerequisite to true experimental design. प्री का मतलब क्या होता है इसमें कि जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एक्सपेरिमेंट करने से पहले, प्री वही बात मैं बोल रही हूँ, प्री मतलब पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले. What are the things should be required for doing the experiment? Non-randomization procedure are used to control for extraneous variable. नो रेंडमाइजेशन प्रोसीजर, इसमें हम लोगों ने पहले एक चीज़ डिस्कस की है इसके फीचर्स में कि रेंडमाइजेशन ज़रूरी है. रेंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो तो आप एक ही ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत कंडक्ट करो. आप एक ग्रुप पे पहली बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो तो उसको दूसरे ग्रुप पे दोबारा उसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करो. मतलब क्या है, एक ही ग्रुप पे स्टिक मत रहो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जाने हैं. आप रैंडमली चूज़ करो अपने ग्रुप्स को, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए. बट प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है, हम नो रेंडमाइजेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. मतलब हम इसमें कोई भी रेंडमाइजेशन नहीं करते हैं. जब हमने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो सारे एक्सपेरिमेंट उसी ग्रुप के ऊपर ही होंगे, ठीक है. तो उसको हम यूज करते हैं कंट्रोल फॉर द एक्स्ट्रानियस वेरिएबल को. एक्स्ट्रानियस वेरिएबल के इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम नो रेंडमाइजेशन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे इसमें, ठीक है. तो समझ आ गया. प्री का मतलब क्या होता है, प्रीक्वेस्ट का मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले व्हाट आर द थिंग्स शुड बी रिक्वायर्ड एंड देयर शुड बी नो रेंडमाइजेशन पॉलिसी इन प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. नेक्स्ट, अभी इसमें हमने पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा है कि 3 तरीके के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं. एक होता है वन शॉट केस स्टडी होता है, एक वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन होता है, एक स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन होता है. तो सबसे पहले हम वन शॉट केस स्टडी पढ़ेंगे. वन शॉट मतलब एक ही शॉट होगा, एक ही शॉट मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट होगा, बस दोबारा कोई और एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक ग्रुप सिलेक्ट किया है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट हम चाह रहे हैं. सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है, हमने सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट ट्रीट किया और पोस्ट टेस्ट का रिज़ल्ट हमने निकाला. मतलब क्या है, यू हैव ओनली वन शॉट, एक ही शॉट होगा. एक्सपेरिमेंट फेल है या पास है वो उसी शॉट पे ऊपर डिपेंड करता है. जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना कि आपके पास एक ही बॉल है, चाहे आप उसके ऊपर 6 लगाओ, चाहे आप उसके ऊपर 4 रन लो, चाहे आप उसके ऊपर 2 रन लो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो आपके पास एक ही शॉट है, यू कैन टेक एनी रन इन दिस शॉट. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास वन शॉट की स्टडी है. आप एक ही शॉट होगा आपके पास, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे और उसका पोस्ट टेस्ट रिजल्ट आप निकालोगे, ठीक है. तो दैट इज़ अवर प्री टेस्ट. अब वन शॉट केस स्टडी क्या हो गया, another example of the one such design might be one of survey of unemployed people in a specific local area to assess their health status and the impact of unemployment on the health. अब हमने इसकी एक एग्जांपल ये वन शॉट केस स्टडी की कि हम लोगों ने सर्वे करना है अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स के ऊपर कि अनएम्प्लॉयमेंट उस लोकल एरिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और उन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी हेल्थ इश्यूज़ कैसे चल रही है, उसको हमने स्टडी करना है. सो दैट इज़ अवर वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन. सो वन शॉट केस स्टडी में क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ काउंसलिंग सेशंस ऑन द एटीट्यूड टू आइडेंटिफाइड बुलीज इन स्कूल, ठीक है. एक और एग्जांपल्स हमने ली है. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमने बुली स्टूडेंट्स लिए हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट की है, काउंसलिंग की, ठीक है, ट्रीटमेंट की है, काउंसलिंग की. ट्रीटमेंट करने के बाद फिर हमने पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, कि इसके ऊपर हमने पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन किया है. हमारी एग्जांपल क्या कहती है, हमारी एग्जांपल ये कहती है द इफेक्ट ऑफ काउंसलिंग सेशंस ऑन द एटीट्यूड ऑफ आइडेंटिफाइड बुलीज इन स्कूल्स. हमने कोई काउंसलिंग सेशंस करना है, उसके ऊपर आइडेंटिफाई करना है बुलीज़ को, ठीक है. तो एक्सपेरिमेंटल बुली स्टूडेंट्स लिए, उसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट काउंसलिंग की, फिर हमने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है. तो इसमें हम किस तरीके से हम देख सकते हैं, लाइक देखो प्री टेस्ट हमने किया, फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट किया, फिर ट्रीटमेंट ली, फिर रेंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है. तो इस तरीके की इसमें चीज़ें कंसीडर की जाती है, ठीक है. सो वन शॉट केस स्टडी में एक और एग्जांपल्स हमने ले लिया है, जैसे हिस्ट्री ली है
पेरेंट्स में हैव अदर काउंसलिंग बी डन एट अदर प्लेस। पहली हिस्ट्री क्या कहती थी, हमने हिस्ट्री किसकी देखी है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि भाई और इसकी काउंसलिंग कहीं और की जाए। इंस्ट्रूमेंट हमने इसमें क्या लिया है, सिलेक्शंस फिर हमने की है कि पॉसिबल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है जो कि मैथमेटिक्स स्टडी में गुड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसके स्टडी को किया है। नाउ नेक्स्ट अवर इज़ वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, ठीक है। इसमें भी की ग्रुप होगा, देयर शुड बी वन ग्रुप, ठीक है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, प्री मतलब बिफोर, पोस्ट मतलब आफ्टर, ठीक है। प्री मतलब पोस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, पोस्ट मतलब आफ्टर, ठीक है। डिज़ाइन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारा प्री टेस्ट होगा, उसका फिर ट्रीटमेंट होगी, फिर पोस्ट टेस्ट होगा। इसमें हमने क्या किया, प्री टेस्ट मतलब बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन किया। बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने से पहले उस ग्रुप की एग्जामिनेशन भी करनी है और उसके बाद ट्रीटमेंट लगाने के बाद आफ्टर एक्सपेरिमेंट के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है उसको भी एग्जामिन करना है। मतलब यू हैव टू कंसीडर द बिफोर द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, यू हैव टू कंसीडर द रिजल्ट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। सो दिस इज वन ग्रुप। वन ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देयर शुड बी नो कंट्रोल ग्रुप। प्री टेस्ट भी होगा इसमें, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन भी होगा, ठीक है। सो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम। टेस्टिंग द अफेक्टिवनेस ऑफ ए ड्रग ए ऑन द कैपेसिटी टू रिकॉल वर्ड। इसमें हम लोगों ने टेस्ट करना है कि ड्रग ए का क्या अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ईजी है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, और सीजी है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब ईजी क्या है, वर्ड रिकॉल्ड। रिकॉल्ड का मतलब क्या है, ऑन कैपेसिटी टू रिकॉल वर्ड्स, मतलब इफेक्ट क्या रहा है ड्रग ए का कि रिकॉल करना, मतलब उन वर्ड्स को दोबारा से रिसाइट, जैसे होते हैं ना क्योंकि उन्हें एडिक्टेड होते हैं तो वो उन वर्ड्स को कैसे बोलते हैं, तो उसको हमने देखना है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के हमने वर्ड रिकॉल्ड को हमने चेक करना है, एक्सपोजर टू ड्रग वर्ड रिकॉल्ड, ठीक है। इसमें हमने चेक करना है कंट्रोल ग्रुप का नो एक्सपोजर करेंगे, ठीक है। सो अब इसमें कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, ठीक है, उसका पोस्ट टेस्ट होगा और उसके बाद आप प्री टेस्ट पहले करोगे, उसका प्री टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट लगाओगे। पहले आप पोस्ट टेस्ट देखोगे, फिर प्री टेस्ट देखोगे एंड देन यू विल टेक द ट्रीटमेंट, ठीक है। सो दैट इज़ अवर वन ग्रुप केस स्टडी। अब मेच्योरेशन इसमें हमने देखा है, टेस्टिंग देखी है, कौन सी टेक्निक यूज़ की है, तो ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ वी हैव द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में क्या होता है, यू विल टेक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप and then you will take the experiment. Firstly you have take the experimental group, then you will take the treatment on this group and then post test result आप देखोगे। कंट्रोल ग्रुप लोगे, उसका पोस्ट टेस्ट। मतलब स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब क्या है, दो ग्रुप्स का डिफरेंस आपने देखना है। तो ऑब्वियसली जितने पहले हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडी पढ़ी है तो उसमें एक ही ग्रुप है, उससे पहले वन शॉट में पढ़ा है तो उसमें भी एक ही ग्रुप है। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में हमारे पास दो ग्रुप आ जाएंगे। दो ग्रुप में आ जाने का मतलब क्या है, यू हैव वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड यू हैव कंट्रोल ग्रुप ऑल्सो। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर आप ट्रीटमेंट लगाओगे, उनका पोस्ट टेस्ट का आप इफेक्ट देखोगे, प्री टेस्ट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप लोगे, उसका पोस्ट टेस्ट का आप इफेक्ट देखोगे, ठीक है। तो इसमें भी आप वो चीज़ें नहीं करोगे। तो अब इसका कंपैरिजन हम देखते हैं। एग्जांपल हमने ली है, डिटरमाइन वेदर प्रेजिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन मेक देम डू बेटर इन मैथमेटिक्स। हमने ये चीज़ को डिटरमाइन करना है कि प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस को प्रेज करने के बाद वो मैथमेटिक्स को किस तरीके से बेटर वे में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली वी विल टेक द टू ग्रुप, एक ग्रुप ए लेंगे और ग्रुप बी लेंगे। ग्रुप ए हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ग्रुप बी हमारा एज इट इज़ ही चलेगा, ठीक है। ग्रुप ए में हम लोगों ने ट्रीटमेंट लगाई है, ठीक है, फिर उसका रिजल्ट देखा है। ग्रुप बी ऊपर वो हमारा कंट्रोल ग्रुप है तो उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका सीधा हमने रिजल्ट देखा, फिर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है। सो दैट इज़ अवर प्री स्टैटिस्टिकल ग्रुप कंपैरिजन, ठीक है। तो इसके अब हम पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ी है वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडी, स्टैटिक्स ग्रुप कंपैरिजन किया है। वन शॉट केस स्टडी में क्या है, यू हैव ओनली वन शॉट, आपके पास सिर्फ एक ही शॉट है, आप एक ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे और उसका रिजल्ट देखोगे, ठीक है, और एक ही ग्रुप आपका इसमें होगा।
वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन में क्या होता है, एक ही ग्रुप होगा, वन ग्रुप ही होगा, बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट आप उस ग्रुप के ऊपर स्टडी देखोगे और आफ्टर ट्रीटमेंट लगाने के बाद भी आप उस स्टडी का रिजल्ट देखोगे, मतलब बिफोर भी देखोगे और आफ्टर भी देखोगे। स्टैटिक कंपैरिजन ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास दो ग्रुप्स होंगे, कंट्रोल ग्रुप और हमारे पास होगा एक कंट्रोल ग्रुप होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर ट्रीटमेंट लगा के इफेक्ट देखा जाएगा, कंट्रोल ग्रुप के बिना ट्रीटमेंट लगाए हमने उसके ऊपर इफेक्ट देखना है। तो ये हमने 3 प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमने पढ़े हैं। अब हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके शॉर्टफॉल्स है। प्रॉज क्या है, एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच प्री एक्सपेरिमेंटल कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव मे टू डिस्कर्न वेदर ए पोटेंशियल एक्सप्लेशन इज वर्थी ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन सूटेबल फॉर बिगिनर्स। प्रॉज में हम लोग क्या देते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में, कि हम ये चीज़ देखते हैं कि इफेक्टिव हो रही है कि नहीं है, कोई पोटेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो भी है हमारे पास। सबसे पहला इसमें प्रॉज यही है, बेनिफिट यही है, कॉस्ट इफेक्टिव स्टडी है, आपको ज़्यादा कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके ऊपर। कॉन्स क्या है, लोअर वैलिडिटी है, ऑब्वियसली लोअर वैलिडिटी है, डिफ़िकल्ट टू असेस है, सिग्निफिकेंस एंड ऑन ऑब्जर्व चेंज आ जाता है, लिटिल कंट्रोल ओवर द रिसर्च रहता है, डिफ़िकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रूल आउट रिलायबल हाइपोथेसिस और एक्सप्लेनेशन। तो ये इसके कॉन्स आ जाते हैं, ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। आपको लोअर रिजल्ट मिलेगा, लोअर कंट्रोल होता है, डिफ़िकल्ट एक्सेस होता है, इम्पॉसिबल होता है थोड़ा बहुत, और हायर थ्रेट ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी के हायर थ्रेट्स होते हैं। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो आज हमने इसी चीज़ को पढ़ा है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को हमने अच्छे से पढ़ा है कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस क्या कौन से और उनके 3 पार्ट्स किस तरीके से हैं, ठीक है। सो दिस इज़ माय वीडियो एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द दैट इज़ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक और बात मैं दोबारा से कह देती हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले इस मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये वैलिडिटीज़ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ग्रुप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उनको आप देखने के बाद इस वीडियो की तरफ आप मूव कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इन अवर लाइव सेशंस। थैंक यू।